Good morning students. How are you all? Today we are going to continue with chapter number 2, Nutrition in Animals, session number 2. In last sessions children, we have discussed about nutrition in animals, how complex food is divided into simpler form by digestion. Then we have discussed about digestion in human beings. In that we have seen different compartments of digestion like buccal cavity, stomach, small intestine, large intestine, food pipe, rectum, anus, pancreas, liver, stomach, etc. Right? Now children, today we are going to discuss about digestive juices. Right? So the inner wall of the stomach and the small intestine and the various glands such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juices. हमारे बॉडी के अंदर बच्चों आपने देखा होगा कि हमारे माउथ में कंटिन्यूस एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो हमारे माउथ को वेट रखता है. That is called as saliva. So saliva is secreted by salivary glands which is situated near the buccal cavity. Okay. Next is about liver. Liver is also secreting digestive juices which helps in further digestion of food, means converting complex substance into simpler substance. Then we are having pancreas, gallbladder. So they all release digestive juices which makes the digestion process easier. Right? Now what are digestive juices? Digestive juices convert complex substance of food into simpler ones. जैसे कि मिक्सचर में हम पॉइंट चेंज करते हैं तो जो हमें जैसी प्यूरी चाहिए स्मूथ रफ हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं. वैसे ही ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं. राइट? दे कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस. डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड, यानी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में हमने पढ़ा और उसके साथ रिलेटेड जो ट्रैक्ट्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, राइट, दे कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ इन लास्ट सेशन चिल्ड्रन वी हैव सीन द डिफरेंट कंपार्टमेंट्स. दे ऑल दैट कंपार्टमेंट्स आर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट and associated glands, for example gallbladder, liver, pancreas, salivary gland, they all are glands which are included in digestive system. The mouth and the buccal cavity. First we are going to discuss is mouth and the buccal cavity. The process of taking food into the body is called ingestion. यानी जो फूड हम खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? Ingestion. We chew the food with teeth and break it down into smaller pieces, mechanically into smaller pieces. यानी जब हम कुछ खाते हैं तो उसे हम teeth से तोड़ के उसे चबाते हैं, chew करते हैं, right? So we are mechanically converting and we are breaking them into smaller pieces. Each tooth is rooted in the separate socket in the gum. हमारे जो टीथ है वो डिफरेंट सॉकेट के अंदर लोकेटेड होते हैं. राइट? सो दिस टीथ वी आर हैविंग डिफरेंट सॉकेट टू लोकेट इन अवर टीथ, यानी वो अलग अलग तरीके से ऐसे फिट होते हैं हमारे गम्स के अंदर. राइट? सो दिस इज द गम एंड दीज आर द टीथ एंड दे आर रूटेड, यानी इसके जो रूट्स है वो गम्स के अंदर ऐसे फिक्स होते हैं. राइट चिल्ड्रन? Our teeth vary in appearance and perform different functions according they are given different names. Right? हमारे जो टीथ है वो सब टीथ सेम साइज के नहीं होते हैं. कुछ बड़े, कुछ छोटे, और जैसे कि मोलार टीथ, प्री मोलार टीथ, यानी आगे के जो टीथ है वो हमें कट करने में हेल्प करते हैं, और जो हमारे अंदर के टीथ हैं, राइट, दे आर हेल्पिंग अस टू च्यू द फूड मोर, यानी उसे और सिंपलर फॉर्म में च्यू करने में हमें, तोड़ने में हमें मदद करता है.
सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। अब ये जो सलाइवा है वो हमारे फूड में चबाते वक्त मिक्स होता है, ओके, एंड इट रिलीजेस, इट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू शुगर, राइट। सो चिल्ड्रन, saliva is also a very important part for our digestive system. If children, we don't have saliva in our mouth, we cannot chew the food properly. खाना हमारे माउथ के अंदर ही चिपक सकता है, but because of its slimy nature, it is helping us to chew and it makes the food sticky, slimy, so it can slip directly from the food pipe to the stomach. वो जो फूड के अंदर मिक्स होके उसे स्लिपरी बना देता है, राइट, और उसकी वजह से जो फूड पाइप में से फूड स्टमक में इजीली रीच हो सकता है। नेक्स्ट इज टंग। द टंग इज फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। जो हमारे टंग है वो क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, उसके अंदर बोन्स नहीं होते हैं, राइट, और वो कैसी होती है, जो हमारी जो टंग होती है वो बकल कैविटी के बैक साइड पे अटैच की हुई होती है, राइट। इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल द डायरेक्शंस। हमारी जो टंग है वो आगे से फ्री है, राइट, इट इज नॉट अटैच, इट इज अटैच ओनली इन द बैक साइड ऑफ द बकल कैविटी, so that tongue can move in all the directions. Besides its use is talking, it mixes saliva with the food during chewing and helping swallow of food. अब ये जो टंग होती है सलाइवा के साथ वर्क करती है, वो हमें च्यू करने में हेल्प करती है, हमें बोलने में मदद करती है और हमारे खाने को मिक्स करने के लिए भी वो हमें हेल्प करते हैं, एंड swallow the food, और उसके बाद जैसे हम खाना चबाते हैं और उसे सिंपल फॉर्म में लाते हैं तो वो पुश हमारे फूड पाइप के अंदर टंग जो है वो हमारा खाना पुश करती है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ अवर टंग। टंग से हमें बहुत सारे टेस्ट भी मिलते हैं और उससे हमारे खाने की रुचि, यानी वी फील लाइक ईटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। इफ देयर इज नो टेस्ट इन फूड चिल्ड्रन, वी डोंट फील लाइक ईटिंग। इट हैज डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, यानी टंग जो है वो हमें डिफरेंट टेस्ट को फाइंड आउट करने में मदद करती है, बिकॉज ऑल द थिंग्स बाय सीइंग वी कैन नॉट नो व्हाट इज द टेस्ट ऑफ द पर्टिकुलर फूड टिल वी पुट इन आवर माउथ। नाउ टंग इज हैविंग डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स। देयर आर डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द टंग, राइट। सो चिल्ड्रन, on the back side of the tongue we are having bitter taste bud, यानी जब खाना बिटर होता है तो ये पोर्शन हमें सेंस देती है, they give message to the brain. Now in upper part, okay, after the back side we are having sour taste, यानी यहाँ हमें चीजें खट्टी महसूस होती है, यानी यहाँ से हमारा ब्रेन सेंस कर सकता है कि ये जो खाना है उसके अंदर कुछ सार चीज है। नेक्स्ट, द फ्रंट बैक साइड इज सॉल्टी। यहाँ हमें पता चलता है कि खाना हमारा सॉल्टी है, एंड इन द फ्रंट, इन द टिप ऑफ द टंग चिल्ड्रन, वी आर हैविंग स्वीट टेस्ट। सो दिस मेन फोर टेस्ट आर located into the taste buds, and that taste buds help us to taste different type of food and give message to our brain that we are eating bitter food, sour, salty or sweet food. Right children? So with this we complete our session. Thank you and have a nice